are welcome to DCC, Devoted Carbon Chemistry channel. My dear student, today we will learn the reactions of or reaction mechanism of Grignard reagent. This Grignard reagent is a very versatile reagent. Millions of compounds can be synthesized or prepared using this Grignard reagent. Question arises, how does this Grignard reagent itself prepared? हम Grignard reagent को कैसे बनाते हैं? Grignard reagent बनाने के लिए अल्किल हैलाइड या एराइल हैलाइड, यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका जो है कोई भी जो है RX आप लिख दीजिए तो वो आपका अल्किल हैलाइड होगा। जैसे इसको हम लिख दें यहाँ पर और यहाँ पर हम Cl ग्रुप दे दें तो ये आपका एक अल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ पर CH3 हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ CH है और यहाँ पर Cl है अल्किल हैलाइड, या इसकी जगह पर एराइल हैलाइड भी हो सकता है। तो व्हेन अल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम टर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। In general, these type of compounds are known as organometallic compound. Means organic compound is bonded with the magnesium. How does this happen? इसको हम आपको बता चुके हैं कि पहले अल्किल हैलाइड लीजिए या एराइल हैलाइड लीजिए। इन दोनों को या दोनों में से किसी एक को मैग्नीशियम रिबन के साथ ड्राई ईथेल में अभिकृत कराने पर आपको अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। तो चाहे आप अल्किल हैलाइड लें या एरिल हैलाइड लें और उसको मैग्नीशियम रिबन के साथ छोटे छोटे मैग्नीशियम के टुकड़े टर्निंग स्टार जिसे हम कहते हैं के साथ अपकृत कराएंगे और ये क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है, तब आपको अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब इसकी कुछ हम अवक्रियाओं को देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से अवकृत होता है। अवकृत क्रिया देखने के लिए आप देखिए ये दिस बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल ए वेरी सिंपल रिएक्शन इन बिटवीन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड मेथेनल or formaldehyde in the presence of dry ether has been shown. This is the first step, and whatever intermediate is formed, that intermediate is hydrolyzed in the presence of acidic hydrolysis. We will get primary alcohol and magnesium hydroxybromide. How does this happen? In the first step, this gets polarized. Why this gets polarized? Because magnesium is a strong electropositive. If one part acquires a slight positive charge, then its counterpart must acquire the partial negative charge. That's why here methyl becomes partially negative, and because of this negative charge, this as a whole alkyl magnesium halide behave as a nucleophile, nucleus loving. It means this will have a negative charge and this will love to attack positive centers. Here is the formaldehyde, the first
aldehyde, formaldehyde or methanol. Because of the pi bond movement toward the oxygen atom. Why does this happen? Oxygen is more negative as compared to this carbon. That's why electron density shifts from this place toward the oxygen. Or what will be the net result? Oxygen will require a partial negative charge and its counterpart carbon will require a slight positive charge, and this negative center would attack this positive center, as you are seeing, or this aldehyde act as an electrophile. This is the nucleophile, this is the electrophile. How does this happen? The negative charged methyl group attack this positively charged carbon atom, and result is the formation of magnesium alkoxide. This is the common name, magnesium alkoxide. And thereafter, in the last step, there is a acidic hydrolysis to form the primary alcohol or first degree alcohol. For example, CH3, CH2, OH. इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वाटर हाइड्रोलिसिस क्या है? पानी के दोनों आयनों से तात्पर्य हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का किसी दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव से अवकृत होना. तो यहाँ H+, इस वाटर का जो H+ है, दिस अटैक द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम and thereby forming OH, and rest is here you can have plus magnesium hydroxy bromide. This will be the second part that will be obtained. My dear student, this is the overall reaction. First step is the polarization. This requires a minus charge and this attacks the positive center in the second step, and in third step there is a hydrolysis. We will get primary alcohol along with magnesium hydroxy bromide. What this happens has been written here. If you look the another reaction with acetaldehyde. Here is the acetaldehyde. ओवरऑल रिएक्शन आपको यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लिया गया, यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपका ये इंटरमीडिएट बन गया ड्राई ईथर एनहाइड्रस निर्जल. एनहाइड्रस से मतलब निर्जल, इसमें ज़रा भी आर्द्रता नहीं होना चाहिए. इसको जो है फिर ये आपका इंटरमीडिएट बन गया और ये हाइड्रोलिसिस करी. यहाँ पर सेकंड डिग्री अल्कोहल आपको बना है, जिससे यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन आप कह सकते हैं, या प्रोपेनॉल 2 भी इसका नाम आप कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपको इंटरमीडिएट यहाँ पोलराइजेशन होगा, फिर दूसरे स्टेप पर जो इसका नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव सेंटर को आपको अपकृत करेगा, और फिर उसके बाद आपको ये बनेगा अल्कोऑक्साइड बनेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा. अब लेट अस समराइज द ओवरऑल रिएक्शंस. यहाँ पर जो है ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विद द कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म द अल्कोहल आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब किस से क्या बनेगा ये देखना है. द क्लास ऑफ अल्कोहल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड यूज्ड. अगर मेथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड आप यूज करोगे, जैसे एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल,
इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। जैसे आपने देखा है यहाँ पर एक और जो है लास्ट में यहाँ एच की जगह CH3 आ जाएगा जब हम एसीटोन का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है मैक, यानी मेथेनॉल से फर्स्ट डिग्री अल्कोहल और एनी एल्डिहाइड अदर देन मेथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये शार्ट याद करने का। ये आपको जो हमने आपको फॉर्मल्डिहाइड बताया, ये एस्टेल्डिहाइड आपको बताया जो मैंने, वो आप किया है। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, ग्रेगोनियल रिएक्शन इज एन आर्गोनो मैग्नीशियम कंपाउंड हैविंग द फार्मूला RMX। आप ये को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसा कि हमने कहा कि एल्किल हैलाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एराइल हैलाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अनुरूप यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बनेगा। अब उसके बाद ये क्या कहते हैं, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ग्रिगोनियल रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल रिएजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is mainly used for formation of carbon-carbon bond, preparation of alcohol, preparation of carboxylic acid। जैसे आप ग्रिगोनियल रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से अपग्रेड कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब इसका खुद का प्रिपरेशन कैसे होता है? जब अल्किल हैलाइड या एराइल हैलाइड को मैग्नीशियम टर्निंग के साथ आप ड्राई ईथर की उपस्थिति में अपग्रेड कराएंगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है वाई ड्राई ईथर का क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्राई ईथर dissolve the grignard reagent, stabilizes the magnesium by coordination, prevent decomposition। without dry ether grignard reagent is not formed। तो दिस इज द वेरी इसेंशियल, ये बहुत ही आवश्यक है और ध्यान देने का आकर्षण का बिंदु है कि इसमें एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को जब हम मैग्नीशियम टर्निंग के साथ अपग्रेड कराते हैं तो ड्राई ईथर का होना आवश्यक है, क्योंकि इसी में ग्रिगोनियल रिएजेंट घुलता है, इसी में स्टेबलाइज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो मजबूत होता है और इसके अपघटन को भी रोकता है। इसलिए ड्राई ईथर का इस्तेमाल ज़रूरी है। वाई मॉइस्चर मस्ट बी एब्सेंट, हमने जो शुरू में कहा था एनहाइड्रस मीन्स निर्जल, कोई भी आर्द्रता नहीं होना चाहिए। तो ग्रिगोनियल रिएजेंट डिस्ट्रॉयड बाय वाटर, जो ही आप वाटर से ये अपग्रेड करेगा, अगर इवन अ ट्रेस ऑफ वाटर होगा तो दिस ग्रिगोनियल रिएजेंट विल डिकम्पोज इनटू अल्केन। तो आप बनाने कुछ चले थे और बन गया कुछ, आपका जो है ये ग्रिगोनियल रिएजेंट बनेगा ही नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आप जो प्रोडक्ट बनेगा उससे रिएक्शन कराएंगे तो कदापि रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको अल्केन बन चुकी है। इसलिए यहाँ पर आर्द्रता शून्य होनी चाहिए, एकदम 0 होना चाहिए जो है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो इस तरीके से हमने बताया था कि बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन दिस एक्वायर्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दिस एक्वायर्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिवली बिकॉज ऑफ दिस Grignard reagent as a nucleophile and this attacks the positively charged carbon of the carbonyl group। यहाँ पर जो है अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम अल्कोक्साइड एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस, फाइनली वी गेट द अल्कोहल। दीज आर द थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर पेशेंस शेयरिंग और प्यार देने के लिए धन्यवाद।